So let's start Django today. So I will give you some intro before we begin. Just one minute. Okay. So I'm sharing my white screen. Okay. So what is Django is a backend server side web framework. So Django is free, open source, and written in Python. Django makes it easier to build a web pages using Python. So basically, if you have front end with a website, yes, like this. If your website is front end, then at the back end, Django is and is the front end. Okay. Uh, Join again. Please ask Sumitra to join again. Okay, sir.
Hello, Sumitra. Can you hear me? Hello, can you hear me? Can you hear me? Hello. और से समझाइए सर। Ah, the front end and back end is there. So, not bad way. सर फिर से फास्ट में। हाँ, सर Django is फास्ट में backend server side web यस सर। framework. Django is free, open source, and written in Python. Django makes it easier to build web pages using Python. So basically, Django is used for backend. लेटर का साइज बहुत छोटा है मैम सर। कौन सा साइन? लेटर का साइज। नहीं, छोटा नहीं है, आपने जूम आउट कर दिया होगा माउस से। मेरे स्क्रीन पे सही दिख रहा है। लर्न बाय डूइंग। सर छोटा है, देख शो नहीं हो रहा है। बहुत छोटा। बहुत स्मॉल लेटर अपने माउस से जूम इन करो आप। कर दिया। हो गया? नहीं। अभी भी सही नहीं हुआ? तो भी सही है। हाँ, थोड़ी तो छोटा। आप आपके एंड से हुआ है, तो आप जूम करो उसको। जूम करने से नहीं होता है सर, फास्ट ठीक ठाक। अभी क्यों हुआ? कैन यू सी माई स्क्रीन? हो गया हो गया सर, Okay. हो गया। Learning by doing. So in this tutorial, you get a step-by-step guide on how to install, create Django project. You will learn how to create a project where you can add, read, update, delete.
You will learn how to make HTML template, use Django template tags to insert data within a HTML document. You will learn how to work with query sets to extract, filter, and sort data from the database. So you will also learn how to set up. Okay, I will do MySQL here. Database, how to deploy your Django project to the world. So basically, our Django is also connected with the database. This one, database. Okay. So what is Django? Django takes care of difficult stuff that makes that you can concentrate on building your web application. So Django emphasizes reusability of components, also referred to as a don't repeat yourself, dry, and comes with a ready to use feature like login system, database connection, and CRUD operation, create, read, and update, delete. So everything is already ready made inside it. You just have to modify your code and use it. Okay. So basically, Django works on, you can say it works on this parameter, model view template. How does Django work? So Django follows the MVT design pattern, model view template. Model, what is model? The data you want to present, usually data from database. Okay. So this is database. This is model. View, a request handler that returns the relevant template. A request handler that returns the relevant template and content based on the request from the user. So like it is like what
your user want to see. Suppose he want to see the home page. Home page. So what view will do? View will show you the home page. But from where? From the template. Template. What is template? Template a text file like an HTML containing the layout of the website with the logic how to display the data. You can say this is folder template. It is having HTML. CSS JavaScript Yeah, included. HTML CSS file. जिसी तरह तो हमारा ड्रीम अपर सॉफ्टवेयर होता है PHP के लिए, डॉट हाँ नेट के लिए जो सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क होता है उससे डेटाबेस पे रहता है, फ्रंट एंड बैक एंड सभी हाँ रहता है हाँ, ये। राइट, करेक्ट। उसमें एमवीसी होता है, अदर दूसरों में एमवीसी होता है, यहाँ पे एमवीटी होता है। तो बेसिकली क्या शो करना है, दैट विल बी शोड यहाँ पे लाइक HTML CSS का चीज, इट विल बी शोन ऑन देयर व्यूज, राइट। राइट, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है ज़्यादा। यू जस्ट हैव टू डू कनेक्शन। तो मॉडल माइस्क्यूल क्या, व्हाट इज माइस्क्यूल डेटाबेस है। मॉडल? सबसे पहले लाइक लेट्स डू इन डिटेल कि मॉडल, व्हाट इज मॉडल? देयर इज सम theoretical part over here. Yeah, model. What is model? Like you can say this is like a database, right? Database. But model basically model.py is a file. So which is, you can write models.py is a file which communicate with the database. Wait, the model provide data from the database. Yes. In Django, the data is delivered as an ORM, object relational mapping, which is a technique designed to make it easier to work with the database. Basically, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि if you want to create a database में कोई टेबल बनानी है तो you will write the SQL queries or MySQL query. No, you will not write any query. You will just make a class. You will make a class and variable inside it. So directly it will make the table in your database. ठीक है, क्वेरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑटोमेटिकली होता है वो। हाँ, या तो वो भी हम धीरे धीरे वी विल लर्न इट। जस्ट 1 minute। जस्ट 1 minute। Okay, so the most common way to extract data from a database is SQL. One problem with the SQL is that you have a good understanding of database structure to be able to work with it.
But Django with the ORM makes it easier to communicate with the database without having the right complex SQL statement. So SQL statement you don't have to write. आप पाइथन की कोडिंग से ही यू कैन कम्युनिकेट विद द डेटाबेस. एसक्यूएल एक तीसरी चीज यू डोंट नीड टू नो लाइक एसक्यूएल, वो नहीं चाहिए. द मॉडल्स आर यूजुअली लोकेटेड इन द फाइल कॉल्ड models.py. ठीक है. तो हाउ वी डू दिस आई विल टेल यू, बट रिमेंबर द मॉडल्स. Okay, now we use a view. A view is a function or method that takes HTTP request as an argument, imports the relevant models, and find out what data is sent to the template and returns the final result. The view is usually located in the file. Okay. So basically, like on your computer, which website you want to see. Like if you want to see the home, so you'll write website/home. So that your URL will go to the views. View.py file. Now this will decide like which HTML file will be shown to you, right? So it will give you home.html file, and that will be displayed to your computer screen. ठीक है, that is decided by the views. View plus there is one more URL.py. इन दोनों की मदद से डिसाइड होता है कि कौन सी वेबसाइट या कौन सा HTML का जो वेबसाइट है आपके सामने पेश होगा whenever you click on any link. Can you see what I'm writing in the what I'm drawing in the screen? Yes, sir. Okay. एक बार रीड करके दिखाना. व्यूज के नीचे क्या लिखा है? A view is a function or methods that takes HTTP request or हाँ as ठीक है arguments. ओके. क्योंकि जूम जूम में थोड़ा प्रॉब्लम है. मतलब यहाँ पे स्टूडेंट को कुछ और ही नजर आता है. ठीक और है. हाँ, हाँ अभी तो शो हो रहा है, पर कभी कभी छोटा बड़ा हो जाता है. छोटा बड़ा होता है. हम्म. A template is a file where you describe. हाँ तो टेम्पलेट क्या होता है? दिस इज अ फाइल डिस्क्राइब हाउ द रिजल्ट शुड बी रिप्रेजेंटेड. टेम्पलेट्स आर ऑफन बेसिकली इसके अंदर HTML फाइल्स होती हैं विद द HTML कोड डिस्क्राइबिंग द लेआउट ऑफ द वेब पेज, but it can also be in other file format to present other results, but we will concentrate on HTML. तो ये दिस इज जस्ट अ फोल्डर. ठीक है, उसके अंदर आपकी HTML फाइल हो सकती है, आपकी CSS फाइल हो सकती है. Yeah, that's it. So this is template folder. तो ये बनाना बहुत ज़रूरी है. We will also make it.
ओके, यूआरएल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यूआरएल क्या होता है, जो हमने यहाँ मेंशन किया ना यहाँ पे, दिस वन, ऐसे। यूआरएल। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि यूआरएल कैसा है। वो भी व्यूज के साथ ही काम करता है। ओके, व्यूज एंड यूआरएल बोथ वर्क टुगेदर, एंड दिस वर्क्स लाइक दिस। So Django also provides a way to navigate around the different pages in a website when a user requests a URL. तो बेसिकली क्या होता है कि यूआरएल का सेक्शन कितना होता है कि जैसे किसी ने बोला कि मुझे होम पेज शो करना है, इसने ये क्लिक किया, तो यूआरएल का काम कितना है, यूआरएल डॉट पी वाई एक फाइल है, इसका काम कितना है कि दिस विल डिसाइड कि कौन सा फंक्शन रन होगा। फंक्शन, अब जैसे इसने बोल दिया कि होम फंक्शन रन होना चाहिए अगर किसी ने यूआरएल दबाया है स्लैश होम, और अगर किसी ने बोला है कि स्लैश ब्लॉग, अगर ये वेबसाइट बोली गई है तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होगा ब्लॉग फंक्शन। ठीक है, इतना पार्ट डिसाइड होता है यूआरएल की मदद से। पर ये फंक्शन है कहाँ, होम और ये सब, दैट फंक्शन विल बी इनसाइड द व्यूज। ये है पूरी बात, व्यूज डॉट पी वाई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसे बना के रखते हैं होम फंक्शन, जो कि शो करेगा हमारा होम डॉट एच टी एम एल फाइल, और जस्ट सेम लाइक दिस एक ब्लॉग का वेबसाइट ब्लॉग फंक्शन होगा जो कि शो करेगा ब्लॉग डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो थोड़ा सा इट इज, आप कह सकते हो कि एक यूआरएल और एक एचटीएमएल फाइल के बीच में एक फंक्शन का बहुत बड़ा रोल है। ओके, देयर इज अ बिग रोल ऑफ फंक्शन, सब चीज डायरेक्ट नहीं होती, देयर इज अ बिग रोल ऑफ फंक्शन यू कैन से। ठीक है, एक यू वेबसाइट, एक आप कह सकते हो वेबसाइट यूआरएल, यूआरएल से, वेबसाइट यूआरएल से लेके पूरा एचटीएमएल पेज पहुंचने तक बीच में फंक्शन का काम होता है। फंक्शन डिसाइड करता है क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पाइथन है, पाइथन होगा तो फंक्शन क्लास ये सब तो होंगे होंगे बीच में। अदरवाइज पहले के जमाने में कैसी बनती थी फाइल्स, बहुत इजीली। पहले के जमाने में ऐसा बनता था कि आपका कोई वेबसाइट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है हाउ डू वी यूज टू क्रिएट द वेबसाइट अर्लियर। नहीं सर। पहले क्या होता था कि हम लोग एक फोल्डर बनाते थे। ठीक है, जब भी कोई वेबसाइट बनानी होती थी तो लाइक हम एक फोल्डर बनाते थे सीधा, फॉर एग्जांपल कि लाइक दिस, कि हमने एक फोल्डर बना दिया, उसके अंदर ही सब कुछ रहता था। ठीक है, होम, ये होम बात है। डॉट एच टी एम एल, हाँ,
home.html, blog, blog.html। करियर, जो भी हो गया उसी के अंदर है। आप एक ये होम ओपन करोगे और उसी के अंदर अगर आपको ब्लॉग पे जाना है तो blog.html करके उसके अंदर ही एक लिंक दे रखी होगी, जिस पे क्लिक करोगे आप तो हाँ ये वाला ये ओपन होगा। हाँ, तो सर सब कुछ ऐसे। बहुत डायरेक्ट था पहले, पर उसमें प्रॉब्लम ये थी ना कि आपकी बहुत सारी चीजें एब्सेंट थी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डेटाबेस नहीं था, डेटाबेस कहाँ से लाओगे, है ना। और हाँ दिक्कत ये थी कि अगर आपके वेबसाइट में अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ई कॉमर्स है, जैसे अमेजोन हो गया, ऐसे। आपको पता है अमेजोन अमेजोन अगर आप पुराने स्टाइल से अमेजोन बनाते तो कितने सारे पेज बनाने पड़ते आपको, कितने प्रोडक्ट हैं अमेजोन में, कम से कम लाखों प्रोडक्ट होंगे। हाँ, तो क्या आप लाख पेज बनाओगे नहीं अमेजोन नहीं पे? पुराने नहीं। जमाने के स्टाइल से अगर बनाते हैं तो लाखों पेज बनाने पड़ते हैं, ठीक है। पर अभी क्या होता है, अभी कुछ भी पेज, अभी कोई भी पेज जो है डिजाइन नहीं किया जाता। मतलब डिजाइन किया जाता है, ऑफ कोर्स एक तो डिजाइन किया ही जाता है, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि सारा जो डेटा होता है वो डेटाबेस से उठ के आता है और पेज पे शो हो जाता है, ठीक है। आप कोई दूसरा प्रोडक्ट चूज करोगे तो दूसरा प्रोडक्ट उसी पेज पे दिखाने लग जाएगा। पेज वही है, बस उसका जो टेक्स्ट है, पिक्चर है, प्राइस है, वो चेंज हो गया बस, है ना। तो ऐसे। पेज मल्टीपल नहीं बनते अब, पेज एक ही बनता है। जैसे जैसे क्या कहते हैं, जैसे फेसबुक का आपने देखा होगा, जो आपका जो फेसबुक का होम पेज होता है, तो अगर आपने सौमित्रा आपने खोला है तो आपका आपको लगेगा कि मेरा पेज खुला हुआ है। अगर मैं खोलूंगा तो मुझे लगेगा मेरा खुला हुआ है, जबकि पेज वो एक ही है, बस हम लोगों के नाम अलग अलग शो होते हैं, राइट। ये ऐसे। चीजें हैं पुराने चीजों में। अगर देखा जाए, अगर ये ओल्ड चीजों की बात करें तो वी डिडंट हैव द डेटाबेस, डेटाबेस नहीं था। और यू कैन से कि एक फीचर ये वाला नहीं था कि मल्टीपल पेज वाला, मल्टीपल मल्टीपल बोल लो आप, या तो बोल लो उसको कि वन पेज, वन पेज वाला फीचर नहीं था पहले। बहुत सारे पेज यहाँ पे बनाने पड़ते थे आपको। हम्म। और भी बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीजें नहीं थी पहले। वो जो आ, अब स्टैटिक पेज हुआ करते थे शुरू में, मुझे मालूम नहीं आपने बनाए हैं कि नहीं, क्योंकि पहले तो वही चलते थे स्टैटिक वाले। इफ यू टॉक अबाउट टू चलते रहना थाउजेंड, चाहिए। हाँ 2015 की बात करें और 2015 के आसपास की बात करें तो मे बी आज से 9 साल पहले, 10 साल पहले तो वी यूज टू क्रिएट इन HTML। बट राइट नाउ इन 2024 और अभी से लाइक वी आर हैविंग डायनेमिक काइंड ऑफ वेबसाइट, राइट। डायनेमिक है। हाँ, डायनेमिक तो स्टैटिक और डायनेमिक में देयर इज बिग डिफरेंस। तो कुछ वेबसाइट पहले ऐसा हुआ करती थी कि लाइक यू बस वो वेबसाइट खोल लो, जैसे नासा की वेबसाइट है, उसको खोल लो, बस इंफॉर्मेशन पढ़ लो ना, उस पर आप आईडी बना सकते हो ना कमेंट कर सकते हो, सब कुछ अवेलेबल नहीं था। बट आज की वेबसाइट होती हैं जस्ट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम। इसमें क्या है कि इट इज़ यू कैन इजीली, इट इज डायनेमिक, तो यू कैन इजीली कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, ये सब कर सकते हैं अभी, राइट। तो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये डायनेमिक बनाना, ये सब जो डेटाबेस से कनेक्ट कर देना एक वेबसाइट को, दैट इज अ पार्ट ऑफ डायनेमिक, राइट। ओके, ऑल राइट। सो
तो आई थिंक मैं ऐसा करता हूँ कि लेट्स जस्ट, हाँ, I'm opening my screen. I'm sharing my screen. ये जब हम इंस्टॉल करते हैं किस तरह करेंगे? क्या करना है? इंस्टॉलेशन हाँ, इंस्टॉलेशन के लिए लाइक, हाँ हाँ, वही मैं बताता हूँ अभी। मेरे सिस्टम में बताइए। अच्छा अच्छा, एक मिनट, हाँ हाँ, आपके सिस्टम में बताता हूँ फिर। नहीं तो दो दो बार करना पड़ेगा, सही बात। ठीक है। आप यू शेयर योर स्क्रीन। Yes. हम्म। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ यहाँ तो आप वो खोलो। जी जैनको नहीं नहीं, जैंगो कैसे खोल सकते हैं हम लोग? वीएस कोड खोलना पड़ेगा। जीसस को हाँ, सबसे पहले तो ना मैं आपको एक चीज देता हूँ, ये अपने पास रखना, सेव स्टोर करके, बिकॉज जेंगो की सारी कमांड जो है ना बार बार भूल जाते हैं लोग। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू जेंगो कमांड्स का सारा कमांड उसका, आई एम गिविंग यू 1 पेज, जिसमें सारे लिख के रखे हैं मैंने उसे कम। ठीक है, सी द कमेंट, चैट बॉक्स। ओपन दिस लिंक। सर अभी नहीं होता है। हाँ। हम्म, ओपन द लिंक। ये भी इंस्टॉल भी जैनको हम्म,
या तो स्टोर बुक मार्क कर लो इसमें, ठीक है। ठीक है सर। किया बुक मार्क? कैसे करते हैं बुक मार्क? हाँ। हाँ, कैसे करते हैं बुक मार्क? जैंगो तो कोई वेबसाइट ही नहीं है, आप क्यों खोल रहे हो उसको? जावा को डाउनलोड करना पड़ता है। नहीं, आप उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? आप उसको बुक मार्क करो। ठीक है सर। कैसे करते हैं बुक मार्क? यहाँ से करते हैं, इधर से, ऐसे। अब यहाँ ये स्टोर हो गया, आप कहीं भी खोलोगे, देखो दिख रहा है ना यहाँ पे, कभी भी वेबसाइट यस खोलोगे सर। तो यहाँ दिखेगा। तो नहीं, देखो इंस्टॉल करना पड़ता है। वेबसाइट वेबसाइट नहीं खोलना है, यहाँ से इंस्टॉल होता है। सबसे पहले, पहली बात तो क्या है कि आप एक अच्छा सा वेब वो बनाओ, फोल्डर। फर्स्ट ऑफ उसमें हम लोग जेंगो करेंगे। हाँ, डीएसए नोट, जावा नोट, पाइथन नोट, डीएस, हर चीज पढ़ रहे हो आप? ये वेबसाइट है। और एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेबसाइट, वेबसाइट डेवलपमेंट। भेज वन। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट को, यहाँ पे लिख देता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट, फिर जेंगो लिख देता हूँ अगर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऐसा, इस पे काम करेंगे हम लोग। तो आई वांट टू ओपन इट। ठीक है, तो वी विल वर्क हेयर। ठीक है, तो इफ यू विल सी, फर्स्ट इज इट सेइंग राइट पिप इंस्टॉल जेंगो। तो दिस इज द वे। तो यहाँ पे लिखो आप, पिप इंस्टॉल जेंगो। डिजिटल लिखना पड़ेगा। नहीं लिखना पड़ेगा, ऑफ कोर्स लिखना पड़ेगा, क्यों नहीं लिखना पड़ेगा? प्रेस एंटर। क्या? क्या? एंटर दबाओ। स्पेलिंग ये ले ले होना।
एंटर दबाऊंगी। हाँ, देखो डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद क्या करना है कि या कॉपी ये दिस एंड चेक करना है कि जेंगो इंस्टॉल हुआ भी है कि नहीं। कॉपी इट यहाँ, विद द हेल्प ऑफ cd means change directory, we move forward और backward in the folders। और ls का मतलब होता है हेलो। डाउनलोड में है। डाउनलोड में नहीं है, वेबसाइट डेवलपमेंट में है। हाँ रीजन। हाँ, तो cd लिख के अगर डॉट डॉट यहाँ पे लिखा तो मतलब एक एक स्टेप पीछे चले गए। राइट, देखो अब सिर्फ यहाँ से बाहर आ गए। अब सिर्फ डाउनलोड में है। अब दोबारा से इस फोल्डर के अंदर जाना है तो लिखना पड़ेगा cd मतलब चेंज डायरेक्टरी। यहाँ लिखना पड़ेगा वेबसाइट। ऐसे पूरा नाम लिखना पड़ेगा फोल्डर का, या तो आधा लिख के टैब दबाओगे तो ये देखो फोल्डर का नाम दिखा रहा है। सही नाम दिखाएगा, प्रेस एंटर मारो। हम दोबारा से उसके अंदर चले आए। ठीक है, तो सब चीज़ लिखनी पड़ेगी ये। cd टू गो बैक इनटू प्रीवियस फोल्डर। ये cd इसके लिए होता है, और cd फोल्डर नेम, फोल्डर नेम होता है टू मूव इनटू फोल्डर। करके दिखाओ मुझे ये। देखो मैंने सब लिख दिया है यहाँ। आह, ये देखो मैंने लिखा है पूरा। ये दोनों बैक जाने के लिए ये है cd डॉट डॉट, और cd फोल्डर नेम आगे जाने के लिए। करके दिखाओ मुझे ये।
पीछे से चले गए। अब आगे आओ। रुको रुको, ये तो नहीं, ऐसे नहीं होगा, रुको। ये तो उसके अंदर चले आए। अब यहाँ से आगे जाना है तो लिखना है CD, और वेबसाइट का नाम वेबसाइट। रुको, पूरा अच्छे से लिखो, वेब, और फिर दबाओ टैब बटन। अच्छा, डाउनलोड्स के बाहर चले गए क्या? अच्छा, डाउनलोड्स, या प्रेस एंटर, डाउनलोड के अंदर आ गए। उसके बाद लिखोगे यहाँ पे CD, वेबसाइट, टैब दबाओगे तो सारे सजेशन दिखा देगा, जेंगो। इसके अंदर एंटर करो। चलो दोबारा से पीछे जाके वापस आओ, फॉरवर्ड। फोल्डर में आने जाना आपको आना चाहिए पूरी तरीके से। चलो ये सीख के मुझे दिखाना, आफ्टर, ऑन फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे। ऑलराइट, विल मीट यू ऑन दैट डे नाउ। हैव अ गुड डे, बाय बाय। बाय।